guys, welcome back to a new podcast. So today I'm doing this podcast with an amazing person. He is Obed Siddiqui and he's an amazing YouTuber. Also he happens to be an engineer. So आज मैं ये podcast इनके साथ करने वाला हूँ because मुझे बहुत कुछ इनसे जानना है because we are from the same field. I'm an engineer too and I'm doing YouTube too. He has been a YouTuber since a very long time and इनके YouTube पे subscriber 60,000 plus है. So today we'll be knowing his journey and how he went to engineering and YouTube. He did it all together. So हम वो साथ में जानेंगे. So let's go. So Obed bhai, first of all, welcome. Let me first thank you for inviting me here. No worries. And I was like very much surprised कि भाई तुमने कब से YouTube channel join कर लिया and when did you start like making videos? But when I saw your videos, I was like very much excited because हम लोग ने वो देखा है यार, like after doing engineering, it's like very much like वो curiosity जो होती है ना, कुछ life में अलग करना है. And seeing your own people doing things that is out of the box is like very surprising, and I'm really happy. And I actually wish you कि भाई अब इतना नहीं है, just keep growing. That's it. Now you can give the introduction if you want to. Okay. So firstly, like I was so excited, you know, when I decided कि मुझे podcast करने हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आपका ही नाम आया. I had some other people also, but you know, like YouTube से ही करना है, YouTube से ही start करना है. So I had this one person कि ओबेद भाई के साथ तो podcast बनाना ही है. And so here I am doing this podcast with you. So आपका जैसे मैंने बताया था, इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ था सब कुछ. लेके मैंने आपका डिस्क्रिप्शन देखा था, मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपका डिस्क्रिप्शन देखा, उसमें लिखा था दैट engineers, people say that engineers can do everything, right? Everything, and I'm just trying to prove them. Exactly. Right. So आपका ये स्टार्ट कैसा हुआ? मतलब जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको YouTube करना है, like some people forced you into it or maybe you decided it yourself? So basically if I tell you the whole journey, when did I start, तो मुझे ना like acting का craze बहुत पहले से था. When I was doing my engineering, तो हम लोग ने बहुत सारे like cultural activities होती थी, तो मैं उसमें participate करता था. Then when I realized कि यार like engineering is not the only thing that I want to pursue, and it was like more like डैडी को चाहिए था करना है. Exactly. I did that. Anyway अच्छे से किया. But when I realized कि भाई this is not my potential, this is not my field, I planned कि मैं acting के लिए थोड़ा auditions वो सब देता हूँ. When I was in engineering, I was like going to audition, like बहुत सारी जगहों पे गया, गोरेगांव में, अंधेरी में है. I didn't know this. So yeah, there is a long story, and वहाँ जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई where I realized कि this industry is not for every individual. Exactly. आपको जाना है तो you know how the process is, और वो शायद मुझे describe करने की जरूरत ना पड़े. So I realized कि YouTube is a very good platform. वहाँ पे ऐसा ना individuality जो है किसी की वो दिखाती है कि आपकी काबिलियत क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू हैव टू डू एवरीथिंग. लाइक तुम्हें स्क्रिप्टिंग भी करनी आनी चाहिए, तुम्हारा लाइक एक्टिंग स्किल एनीवे वो ग्रो हो ही जाता है टाइम. उसके साथ साथ तुम्हारी एडिटिंग स्किल ग्रो हो जाती है. यू नो हाउ टू डू द सिनेमाटोग्राफी एंड सब. इन शॉर्ट एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, और वहाँ पे किसी की रोक टोक नहीं है कोई परेशान करने के लिए. सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट यूट्यूब एंड देन लेट्स प्लान कि अगर अच्छा हो जाता है then you can do multiple things. और उसने कहा यार बहुत cool था YouTube पे, चल यार करना पड़ेगा अब तो बस this is how I started YouTube. How was the experience like you got into YouTube and I guess आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुआ. Okay. So जो exposure मिला कि 60,000, I mean 50,000 first time हो चुके थे ना? It was like 18,000 in the third video that I. And तब आप कौन से year में थे engineering में? मेरा इंजीनियरिंग हो गया था. मैंने घर वालों से ब्रेक लिया था कि मुझे 1 साल का टाइम दो. I'll do something that I want to do. Otherwise anyway शादी करनी है, बच्चे करने हैं, जॉब करनी है. I don't want to do that because this is my age and I want to do something like along with my age. तो उस हिसाब से मैंने प्लान किया कि 1 साल का ब्रेक लेता हूँ. आई डिडंट डू एनी जॉब. मेरे फ्रेंड्स लोग सब जॉब लग गए. आई वाज लाइक लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या चल रहा है. देन आई स्टार्टेड यूट्यूब, और वो भी बहुत एब्रप्टली हुआ. हम लोग ने एक रक्षाबंधन का वीडियो शूट किया घर पे, एंड इट वाज लाइक वेरी लाइक बोलते ना एक अटैचमेंट वाला वीडियो था, लाइक कोजी टाइप्स, और हमने वो फेसबुक पे डाल दिया. एंड वहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है. एंड इट वाज लाइक रक्षाबंधन कल है, मैंने आज डाल दिया. पीपल वर लाइक डाल दे इसको यूट्यूब पे एंड स्टार्ट द जर्नी राइट नाउ. मैंने उसी दिन डाल दिया एंड पता नहीं कैसे दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, और उसको पहली बार 10K व्यूज चले गए एक दिन के अंदर. एंड वी वर वेरी सरप्राइज कि यार ये पहली बार हो रहा है. एंड हमारे लिए 10K व्यूज लाइक टू मच. उस टाइम हम इंस्टाग्राम पे थे, बट भाई 2 से 3 लाइक्स आते थे प्रोफाइल पे, एंड गेटिंग 10K व्यूज ऑन योर वीडियो वाज लाइक वेरी सरप्राइजिंग. एग्जैक्टली. तो उसके बाद से हम लोग ने प्लान कर लिया था कि भाई अब टीम बनाएंगे, कंटेंट प्लान करेंगे, शूट करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड लाइक मेकिंग वीडियोस. So ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा कॉलेज में, हो मे बी कॉलेज के बाद में, दैट यू आर यू नो सिटिंग आउटसाइड इन अ कैफे एंड पीपल विल कम टू यू? क्योंकि मैंने बहुत यूजुअली ऐसा देखा है दैट यू नो यूट्यूबर्स बैठे हैं, उनके पास में लोग आ रहे हैं पूछने के लिए. सो आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जब आप बैठे हो एंड
आपके पास कोई आपका फैन आया, आपके चैनल ही भी लाइक आई वॉच योर चैनल, ऐसा कुछ तो हुआ? ऐसा हो गया था, लाइक देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज इफ आई टेल यू। मेरा सबसे फेवरेट सिनेरियो कब था, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय यूट्यूब इन द अर्ली फेज, तो 1 साल ही हुआ था मेरा यूट्यूब को। आई वाज लाइक विजिटिंग यूट्यूब स्पेस एंड स्टफ, तो वहाँ पे ना आई वाज एक्चुअली वर्किंग एज वेल इन अ कंपनी, मतलब इंजीनियरिंग किया तो एनीवे कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी और मैं ना लाइक सर्विस का लाइक मेरा प्रोफाइल था, तो आई वाज ट्रैवलिंग लाइक पैन इंडिया आई यूज्ड टू ट्रैवल। तो आई वाज इन अ डिफरेंट स्टेट, आई वाज इन न्यू दिल्ली एंड वहाँ पे मैं मेट्रो में था एंड मेरा काम वाम रैप करके मैं जा ही रहा था। लिटरली मेट्रो में एक बंदा मिला, उसने पहले तो नोटिस किया, ही लाइक गेज मी फॉर अ व्हाइल एंड देन ही टोल्ड मी भाई आपका मैंने कुछ तो कहीं आपको देखा है। आई वाज लाइक कहाँ? तो उसने 3 सेकंड में मुझे रिस्पॉन्ड किया, अरे आपका कोई वीडियो है क्या जो मैंने देखा है, एंड ही टोल्ड मी अबाउट दैट मेन विल बी मेन वाला वीडियो। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, ये इधर तक पहुंच फीलिंग गया बहुत है। अच्छी आती होगी। दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल फीलिंग। उसने बंदे ने स्टोरी भी डाली थी मेरे साथ फोटो तो लेके, एंड आई वाज लाइक अरे यार क्या हो रहा है। That's amazing. So that is the very that is a scenario that is very close to my heart because वो ऐसा था कि मैं दूसरे स्टेट में हूँ Exactly. और वहाँ पे कोई अनजान बंदा मिलके वो बोल रहा है, तो भाई that made my day। and वही चीज़ है जो हम लोग क्रिएटर्स को थोड़ा पुश करती है यार, कुछ नया करो, Exactly. कुछ करो। And your content is of course the best. Like I keep trying because you are the only person जो मतलब जो मेरा friend है and जिसका YouTube channel है जो इतना like on a high level पे grow कर चुका है। So that's very amazing. Also आज जैसे आप engineer हो तो मुझे आपके engineering life के बारे में बताओ, क्योंकि also I am in my last year right now. Okay. So आपकी engineering life आप 4 साल को एक छोटे वे में describe कैसे करते हैं? एक्चुअली मेरा 4 साल नहीं था, मेरा 6 साल था बिकॉज आई Okay, डिड डिप्लोमा। diploma. आई डिडंट गो फॉर 11-12। तो 11-12 नहीं करने का यही एक रीजन था कि मतलब डैडी वांटेड मी टू बी मोर टेक्निकली साउंड, Okay. बट इवेंचुअली इट्स नॉट हेल्पिंग मी एनीवे नाउ Yeah. बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट डोमेन। Exactly. तो व्हेन आई डिड माय डिप्लोमा आई वाज लाइक वेरी स्टूडियस, लाइक 90% रखना, एक कॉलेज में जीएस वाला टैग हासिल करना, कॉलेज में इवेंट्स करवाना, परसेंटेज मेंटेन करना, दैट वाज वेरी कूल, लाइक हर चीज़ में अच्छा होना। When I came to engineering, then I realized कि यार education is completely fucked up in India. Exactly. And आप कितना भी वहाँ पे अपने end से कर लो कुछ भी मेहनत, everything is theoretical, आपको सिर्फ पास होना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। Right. इनफैक्ट जब मैं डिप्लोमा था आई गॉट अ जॉब, मैंने की नहीं बट द पे आउट वॉज सो गुड जो शायद इंजीनियरिंग करने वालों को नहीं मिलती है। देन वी रियलाइज कि यार ये करके कोई फायदा नहीं है। Exactly. Even if you're doing engineering, you have to do something else, like either specialization or either something that helps you grow in the industry. Then I realized भाई इतना कचरा हो गया तो let's not get into that. तो इंजीनियरिंग was very cool. इंजीनियरिंग में आने के बाद हम लोग ने ना पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया। अब वो अगर डिटेल में जाएंगे तो शायद ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, I don't want to do that, but इतना था कि पढ़ाई छोड़ के सब हुआ। Yeah. बस। So your college was Sabu Siddiq, right? I did my diploma from Sabu Siddiq and engineering was done in Karjat. तो I didn't know. I thought that Yeah. you did your engineering also from Sabu unfortunately Siddiq. I shifted to Ambernath and that is the reason I have to like take this college because that was like having a proximity, मतलब आधे घंटे का टाइम लगता था जाने के लिए। तो और मैं जाता नहीं था एनीवे कॉलेज, हम लोग जाते भी थे तो लाइक महीने में 3-4 लेक्चर अटेंड करते, बाकी टाइम घर पे या कहीं बाहर। Typical engineer behavior. टिपिकल इंजीनियर, एग्जैक्टली। Yeah. You just have to study for 1 week and you are like doing good. तो Exactly. जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। Right. तो हाँ। आपका जो इंजीनियरिंग लाइफ थी, तो जैसे आपने बताया कि आपने कॉलेज शिफ्ट किया, सो आपको फ्रेंड्स कैसे मिले? लाइक यू नो पीपल से दैट आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके करियर के लिए। Exactly. In fact, that was the age when you actually need good friends. Exactly. Because that is the stage when you evolve. Yeah. और वहाँ पे हम लोग हर चीज़ सीखते हैं और ग्रास्प करते हैं। अभी ये है कि हम लोग की maturity इतनी आ चुकी है, we know how to take decision. Yeah. वो टाइम पे बहुत सारी चीज़ें crucial होती हैं। But eventually मेरा crowd था पूरा मुंबई सबब का। When I went to Karjat, it was like very like different. The environment was very different for me. Yeah. But ऐसा ना कि एक बार आदत हो गई, अडाप्ट कर लिया, तो वहाँ के लोग के साथ रहना, उनके साथ चिल करना बिकेम वेरी कूल। और Yeah. हम लोग इनफैक्ट कॉलेज के आसपास प्रेमाइसेस में कहीं नहीं रहते थे, बट करजत में हर जगह रहते थे। घूमना है, पहाड़ है, वाटरफॉल है, बस वी यूज्ड टू लिव दैट लाइफ। एक अलग ही वॉन्डर वाली लाइफ थी, बट दैट वाज आल्सो वेरी लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस कि लाइफ में सबको नहीं मिलता है करने के लिए। Yeah. तो हमने किया, बस पढ़ाई छोड़ के सब किया। But that's good. You are on a good place right now. होपफुली आई डू मच बेटर, दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा, जैसे आपने हाँ जी। बताया दैट आपने मम्मी डैडी को बोला इंजीनियरिंग के बाद में दैट मुझे 1 साल का गैप दे। सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? बिकॉज इंडिया में हाँ। यूजुअली ऐसा नहीं होता, ओके ठीक है फाइन बच्चा आपको जो करना आप कर लो। देयर इज लाइक अ स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स। नहीं, my parents have always been supportive to me. Like, मैं That's अभी amazing. तक, it's been like 5 years I did my engineering. Like, I graduated. Still, I'm playing around with my career just because I'm not satisfied with what I'm doing. Okay. And it is more like जो करने मिले कर लो,
till the time you are happy, ऐसा कि पैसा is not the most important thing in life. Yeah. Till the time I am able to pay my EMIs, I know how to like satisfy my Of bills. course. I don't care मैं कुछ भी करूँ. अगर मेरे को Exactly. सुकून है, मेरे को अच्छी नींद आ रही है, मुझे सुबह उठ के दूसरे दिन भागने की इच्छा है, that means I am living a good life and this is what I am working. And ये चीज़ में मेरे parents बहुत supportive हैं अभी भी. It's like this is my age of getting married, but my parents are like ठीक है जो करना है कर, नहीं करना ना, फिर कोई issue नहीं. So this That's is how that's this is really how good. cool they are. You know, like Yeah. staying in Ambernath and having such parents, supportive parents, that's Mhm. amazing. I hope your parents are the same. Of That is course the reason they why are. you started Yeah, your that's- YouTube channel. Mm. And I believe you should like keep doing it because भाई यही age है. This is the age where you grow. I know, right? I Mhm. know. I was never, you know, intended Mhm. to start YouTube channel, but my mom dad they always were like, Okay. start a YouTube channel, start a Okay. YouTube. तो both we brothers, फरजान को भी and मुझे भी. Yeah. But then I don't know what happened. Suddenly one night it clicked. Okay, fine. I need Okay. to do it. I need to start this YouTube channel. And back then when I was, you know, thinking of starting a Mhm. YouTube channel, I was like, पहले मुझे उबेद भाई से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये चीज़ का. So coming to that, Mhm. आपका एक्सपीरियंस लाइक you have worked in YouTube. आप Mhm. कितना साल हुआ आपको YouTube को? It's been like 4 years. 4 years ना. तो जब लॉकडाउन से पहले YouTube चल रहा था एंड जब जैसे आपको खुद को पता है Mhm. कि लॉकडाउन में बहुत सारे नए नए चैनल्स आए हुए. I know. So back then when you were working as a YouTuber Mhm. and आज तो आपको डिफरेंस क्या लगता है लाइक? Difference as in if I tell you, in fact जब lockdown लगा तब तक everything was very cool. Though we had competition like TikTok was a platform that was blooming and everybody was like on TikTok and they were working on the platform. उस टाइम पे कुछ इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं आता बिकॉज यूट्यूबर्स की एक अलग वैल्यू थी Yeah. बिकॉज दे वर द एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर आई बिलीव दे आर द ओनली कंटेंट Exactly. क्रिएटर अकॉर्डिंग टू मी नॉट इवन इंस्टाग्रामर्स जस्ट बिकॉज posting a picture or like just mimicking something and wearing good clothes doesn't mean you're delivering a good content. This is what I feel. I shouldn't like this is not a contradictory statement but ये चीज़ है. It's kind of controversial When- but I you said know, the right thing. I know, but I don't want to like abuse them It's fine, in this it's manner. fine. But this is a fact that we Yeah. believe, every creator believes. और क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद है ना एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई सब घर पे हैं लोगों की Exactly. जॉब नहीं है व्हाट डू दे नीड टू डू तो सोशल मीडिया है Right. सब वहाँ पे सोशल मीडिया स्टार्स या क्रिएटर्स समझ के अंदर आ चुके थे एंड दैट वाज अ पीरियड जब ना पूरा सोशल मीडिया डाइल्यूट हो गया एट दिस मोमेंट सबके पास यूट्यूब चैनल है सबके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और जो भी वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म में सब लोग हैं कुछ भी डालो कुछ भी करो बट यू आर एन इन्फ्लुएंसर Right. सो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक शाटर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज उनका कंटेंट अच्छा था बट अब ऐसा है ना कि एक्सेसिबिलिटी की वजह से ना वो जो उनको प्रिविलेज मिलती थी अब नहीं मिल रही है तो कंपटीशन बढ़ गया है एनीवे यूट्यूब डजंट पे दैट मच Exactly. सो सबने अपना कहीं ना कहीं डायरेक्शन लाइक डिवर्ट कर लिया कहीं और जा रहे हैं सो दिस इज व्हाट आई फील कि यार अब बहुत बदलाव आ चुका है दिस इज समवेयर हैम्परिंग द लाइक गुड कंटेंट और द गुड क्रिएटर्स हु आर देयर इन द हुड लेट्स सी अब आगे क्या फ्यूचर होने वाला है यूट्यूब का So जैसे लाइक अकॉर्डिंग टू यू जो क्रिएटर्स पहले से काम कर रहा है so उनको अभी उतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा जितना लाइक न्यू यूट्यूबर्स को मिल रहा who है. are trying good new tricks like for example collaborating and trying to adapt with the current scenario for example आज के टाइम पे ना कुछ भी चल रहा है and you know how it is in fact Yeah. if you see the trending page of YouTube it is like crash Exactly. कुछ भी आ जाता है वहाँ पे but everything is being happening तो ऐसा है कि if you are very much manipulative if you are very much diplomatic in playing around with the content then only you can survive otherwise this is not a good career option Exactly. till the time you are happy making content till the time you are happy doing something that makes you happy it's good when you get pressurized कि यार कुछ grow करना है नहीं हो रहा है and you want to keep your ethics with you तब वो थोड़ा frustrating हो जाता है Also, this attitude, like people say, if you don't enjoy doing YouTube, you shouldn't do it. So, what do you think? Is it right or wrong? Yeah, it is a fact actually. If I tell you कि अगर मैं कोई वीडियो शूट करता हूँ तो I prepare a lot for that. I actually don't get like for example अगर मेरी कल शूट है तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी. I won't sleep. I will keep thinking कि मैं क्या करूँ कैसा दिखाऊँ तो मुझे अच्छा दिखेगा and that keeps you alive. अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा like distraction आ जाता है ना तो then things go in a different manner. जैसे you know, people say that engineer जुगाड़ू होता है. You are an engineer. So वो instinct जो engineer की जुगाड़ू instinct है, वो आपको life में अभी कहीं use हो रही है, YouTube में आपने कहीं use किया होगा. Do you think that thing really helped you somewhere? Basically, if I have done engineering, this is very clear कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना, I have a different perspective. For example, हमने अगर machine design की है या हमने ये जो हमारा CAD या जो भी हम बोलते थे मुझे याद भी नहीं रहा तो हमारे पास ना हमारा एक पर्सपेक्टिव जो होता था कोई भी चीज़ को लेके इट वाज वेरी क्लियर इवन व्हेन आई एम लाइक राइटिंग द स्क्रीन प्ले और द स्क्रिप्ट
आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग कि मेरा क्या होने वाला है, और वहाँ पे जब मेरा शूट के टाइम पे व्हेन आई एम शूटिंग एंड आई डोंट गेट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो फिर मेरा दिमाग वहाँ क्रैक हो जाता है, यार नहीं ये चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट हमारी ये चीज़ अच्छी काम आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल इनफैक्ट मैं कभी कभी जब शूट कर रहा था तो हम लोग ने एक दो रेस्टोरेंट बुक किए थे, वहाँ की लाइटिंग तक खराब हो गई थी, तो मुझे वहाँ की लाइटिंग ठीक करनी पड़ी जस्ट बिकॉज आई वांटेड अ प्रॉपर लाइटिंग ऑर्डर। So you अब had मेरे an पास upper hand over there. एग्जैक्टली व्हेन यू आर टेक्निकली साउंड, यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड। मुझे पता है 5 एम्प और 15 एम्प में डिफरेंस क्या है, मुझे पता है लाइट कहाँ लगेगी, हाउ मच डिफरेंस इट कैन क्रिएट। तो वो सब चीज़ें हमने कहीं ना कहीं तो बेनिफिट दी है भाई इंजीनियरिंग। एनीवे लाइक व्हेन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, एनीवे यू आर डूइंग लाइक एवरीथिंग, तुम्हें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एवरीथिंग यू नो, सो इट हेल्प्स। So engineering आपने जब ले engineering मतलब जब आपने engineering स्टार्ट की थी, ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आपको engineering करनी ही थी, तो जब आपने ये सोचा था कि engineering नहीं करनी, तो आपने क्या एक अलग प्लान सोचा था कि फाइन अगर मैं engineering नहीं करूँगा तो उसके अलावा मैं क्या करूँ, क्योंकि आई थिंक दैट YouTube was not your first hand plan that I wanted to be a YouTuber, ये आपने पहले से नहीं सोचा था। सो जब आप इंजीनियरिंग में घुस रहे थे तो एक एक दिमाग में होता है कि नहीं, आई एम डूइंग दिस बिकॉज माय पेरेंट्स आर टेलिंग मी। एक्चुअली एट दैट फेज आई वाज इन अ वेरी एड्रेनलिन मोड, जहाँ पे मेरा ये फिक्स था कि यार बेडी को चाहिए करना है, मैं करूँ तो मैं करूँगा, उसके बाद जो लाइफ में करना है वो मैं करूँगा। सो आई वाज वेरी फोकस कि करनी तो इंजीनियरिंग है, देन आई डिसाइड मुझे क्या करना है, एंड वही चीज़ मैंने की। इंजीनियरिंग एनी हाउ आई डिड इन अ वेरी गुड मैनर, ऐसा नहीं कि भाई बस पास होके निकले, वी डिड रियली गुड। आज भी प्रोफेसर हमारे कॉन्टैक्ट में जस्ट बिकॉज वी वर लाइक इन दैट ऑरा। तो इंजीनियरिंग करनी थी तो फिक्स था, ऑप्शन कुछ था ही नहीं, उसके बाद जो करना है अब ऑप्शन हमारे पास बहुत है। एग्जैक्टली। तो आप YouTube में, आप जैसे आपने बताया आप YouTube स्पेस गए थे, सो यू माइट हैव हंग अप विद डिफरेंट बिग क्रिएटर्स, राइट? सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज व्हेनेवर आई सी दैट these YouTubers are meeting, a collab is happening, जहाँ पे सब मिलके एक कैफे में बैठे हैं, और ये जो YouTube की समिट्स होती है, आप भी अटेंड किया था आई गेस आपने? हाँ मैंने करीब 2 साल, मैंने इसका 2 साल तो मैं आई वाज देयर विद देम, लाइक वी यूज्ड टू चिल आउट टुगेदर, वी यूज्ड टू हैव फूड टुगेदर। So I have seen many creators grow, and all the creators, like for example if we talk about Bhuvan Bam, if we talk about Prajakta Kohli, तो मुंबई का निखिल, ये सब हमारे टाइम पे, इनफैक्ट Biyonic, तो ये सब हमारे टाइम पे ना इवॉल्व हो चुके थे एंड दे वर ऑन द पीक, बट वो लेवल पे नहीं थे जो अभी वो लोग हैं। तो उस टाइम पे भी हम लोग उनके साथ बैठ के उनसे इंस्पायर होके वी हैड अ लाइक वेरी गुड सेशन। और आज के टाइम पे मेरे सेशन में जो थे, लाइक मेरे साथ जो क्रिएटर्स थे, बिकॉज वी यूज्ड टू गेट सेशंस फ्रॉम यूट्यूब स्पेस जहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि आप कैसे करो क्या करो। तो आज के टाइम पे मेरे जो बैचमेट्स थे, दे आर स्टिल डूइंग गुड, रियली गुड एक्चुअली इन द इंडस्ट्री, और उनका नाम ऑलरेडी है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो आई हैव सीन थिंग्स हैपन लाइक इन अ वेरी फॉर्चुनेट वे फॉर दैम। तो वो एक अलग फील होता है भाई, वो डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप अब होता, यू गाइस कुड आल्सो हैव लाइक टेकन अ प्रिविलेज फ्रॉम आई विश आई मिल जाता, बट अभी ऐसा हो गया कि इंडिया में है नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए हैं, सबको मैनेज नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। तो आपका भी जो YouTube चैनल है आपका, वो भी फिलहाल डाउन चल रहा है, राइट? You aren't posting anything. I know it's been like 2 years I haven't posted a single video. मेरे इनफैक्ट चैनल का भी अगर मैं बताऊँ, मैंने 2017 में अगर चालू किया था, it's like 2021, और मेरे सिर्फ चैनल पे 18 वीडियोस हैं। ना मैंने कोई ऐसे है कि आर्काइव किए हो या डिलीट किए हो, 18 वीडियोस ही मैंने डाले हैं, उसके अलावा एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं। एंड कितने वीडियोस में मिलियन प्लस व्यूज है? 2 वीडियोस में है जो मिलियन प्लस हैं, और एक पे शायद हो जाएगा बहुत जल्दी। सो हाउ वाज योर फीलिंग कि 1 मिलियन हिट हो गया? क्योंकि 1 मिलियन इज नॉट स्मॉल, 10 लाख बड़ी बात है। So there is a very funny story behind that. मेरा जो थर्ड वीडियो था, वही मेरा वीडियो एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस किया था उसने, एंड आई वाज लाइक, मैं एक मैयत में गया था, मैं एक सेरेमनी अटेंड करा, डेथ सेरेमनी। मैंने वीडियो आज शाम में डाल दी, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कुछ, मैंने फ़ोन में शूट किया, फ़ोन में एडिट किया, डाल दिया, विदाउट एनी टैग्स, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, लाइक सिर्फ टाइटल के साथ। आई हैड नो आइडिया क्या होने वाला है, मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई हैड नो एक्सपेक्टेशन। मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैं करता था उस टाइम पे। नेक्स्ट रात मैं सो गया, मैंने चेक नहीं किया व्यूज़ आए नहीं आए, आई वाज लाइक वेरी कूल। दूसरे दिन सुबह एक डेथ हो गई थी, मैं वहाँ गया था, दोपहर में मेरे घर से कॉल आता है, मेरी मम्मी बोलती है अरे बेटा ये व्यूज़ ऐसे क्यों भाग रहे हैं। एंड देन आई चेक, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे 15,000 30,000 व्यूज़ जंप कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक कोई मेरे चैनल के साथ कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कोई उंगली तो नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली इट वाज हैपनिंग, वो वीडियो वायरल हो चुका था और वो हर जगह पे लाइक ट्रेंड कर रहा था। इनफैक्ट मेरा वीडियो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी लाइक उस टाइम पे वायरल था। तो हर 1 सेकंड पे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे 30,000 व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं। तो क्या नहीं, मैंने वो अलग एक फीलिंग थी, वो मतलब वो डिफाइन नहीं कर सकता, वो ग्रोथ रेट अलग था। एक दिन में मुझे 18,000 सब्सक्राइबर्स ऐसे ही मिल गए। एंड देन आई रियलाइज कि भाई अब ना फ़ोन से नहीं होने वाला है, यू हैव टू लाइक गियर अप, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्लेटफॉर्म, अदरवाइज
फिर मतलब नहीं. Exactly. So आपकी जो YouTube journey थी आज तक की, how will you describe it? Just one word. It was amazing, and it was very much. It was a platform that gave me a lot of experience. Like I was not that like extrovert kind of person. आज के टाइम में इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ. That is just because of YouTube. Because now I know how to face the camera, and now I know what to talk and when to talk. Yeah. So that helped me somewhere. And now you're into media industry, right? Yeah. So what is your call? Like आगे लाइफ में क्या करना है? मीडिया इंडस्ट्री में करना है या यूट्यूब में करना है? Basically, if I tell you, still I am playing around with my career. Whenever I meet anyone, whoever asking me क्या करना है, क्या कर रहे हो, I'm like अभी तो करियर के साथ खेल रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या करते रहूँ. तो still I will be playing around जब तक मुझे अच्छा लग रहा है. Till the time my family is happy, I am able to give them what they require, what they deserve. I am very happy. मुझे कोई लेना देना नहीं लाइफ से. I will be like very much playful with my career in future as well. You know, I've been talking to a lot more people, and I have friends जो ना मेरे से छोटे हैं, Okay. 17 years old, 16 years old. So when I asked them कि आपको क्या करना है, like because we people we were हम वो phase में नहीं थे, like वो जो millennial kids वाला था ना, Okay. हम उसमें नहीं है. So हमको ना थोड़ा practical knowledge हमें है, and we live kind of practically. Okay. So अगर हमें कोई पूछता है कि what you want to do in life, तो हम उनको कुछ बोलेंगे we are engineers, we can do something. आज मैं अगर किसी को ये पूछ रहा हूँ ना, तो दे आर टेलिंग मी मुझे यूट्यूबर बनना है, आई वांट टू बी एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ों में इंडिया में एटलीस्ट आगे लाइफ बन सकती है? इंडिया में अभी फिलहाल तो स्कोप नहीं है. देयर आर मल्टीपल एजेंसीज मैनेजिंग इन्फ्लुएंसर. इनफैक्ट माय कंपनी आल्सो मैनेजेस मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स. बट ऐसा है ना कि आप ना भेड़ चाल मत करो. लाइक इफ पीपल आर डूइंग दैट, यू जस्ट डू इट. जैसे इंजीनियरिंग का एक टाइम था जब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट उसके बाद हुआ क्या, सैचुरेशन आया, डुअल पीरियड आया, सब खत्म हो गया. बट स्टिल इट इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड. तो एनीवे सर्वाइवल हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यहाँ पे ऐसा है कि हर कोई क्रिएटर है, तो सबको कंपनीज नहीं ले सकती. यू हैव टू बी समवेयर डिफरेंट, देन ओनली यू हैव अ स्कोप. और अभी के टाइम पे ना एक्सेसिबिलिटी बढ़ने की वजह से आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड करियर राइट नाउ. बट या इवेंचुअली यू कैन सी इन द फ्यूचर कि अगर कुछ ऐसा आए, like transformation आए where you are getting good revenue, then you can think of it. Otherwise this is a secondary option that you can keep around. Exactly. So now we are coming into the podcast, I mean end part of the podcast. So मैं जैसे एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, एंड बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स हैं जो मेरी एज के हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनका ये प्लान है कि एटलीस्ट आप में यूट्यूब करना है. सो और यू आर ऑलरेडी अ ग्रोन अप यूट्यूबर. सो एक एडवाइस है आप जो हमको देना चाहोगे, या यू नो समथिंग जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है कि ये मत करो या ये करो जिससे हमारी ग्रोथ हो सकती है, समथिंग लाइक दैट. I believe you have to filter out कि आपको क्या genre रखना है. Be it entertainment, be it sketch, be it like vlogging, और बहुत सारे इसमें हैं. But be very selective in the like genre that you select. और उसमें ऐसा है ना कि you have to be like the best if you are doing it. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लॉग करता हूँ तो आई नीड टू जस्ट बी लाइक मुंबई का निकल, ऐसा नहीं है. इफ़ यू हैव योर डिफरेंट टेस्ट, इफ़ यू हैव योर ओन क्रेज, तो वो ऐड करो. वही लोग देखना चाहते हैं. बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पीपल विल वॉच मी एंड नॉट द सीन दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. बिकॉज उनको मुझसे रिलेट करना है. इफ आई वॉन्ट टू लाइक बिल्ड माई ब्रांड वैल्यू, तो वो मेरी ज़ुबान से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे चलने से वो तब डिफाइन होती है. इफ़ यू वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस एनीवन, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, लोग आपके फैन बने जस्ट बिकॉज हु यू आर, not because who you are trying to portray. Right. So if you are doing that, select your genre, filter it out, like select your personality कि तुम किस वे में अपने आप को दर्शाना चाहते हो, और वो चीज़ को पकड़ के चलो. जब तक लोग तुम अगर हेट देने वाले एनीवे आएंगे, बट यू नीड टू नो यू आर डूइंग इट इन अ परफेक्ट मैनर. यू नीड टू पोर्ट्रे इट टिल द टाइम यू हैव योर दिस चैनल ऑफ योर्स. बस यही है कि भाई अपनी आइडेंटिटी मिस नहीं करना है इसमें. वही लोग कर देते हैं और फिर कुछ और दिखाने लग जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है. डोंट डू दैट. बाकी कंटेंट ऑटोमेटिकली भाई पुश होता है इफ द कंटेंट क्वालिटी इज गुड. बाकी कुछ नहीं करना. अच्छा, बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट आई हैव दिस वन क्वेश्चन. एज यू टोल्ड दैट हेटर्स विल कम, आपको भी आए होंगे हेटर्स? काफ़ी आए थे. इनफैक्ट मेरे पास तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे यूट्यूब वॉज वेरी न्यू टू पीपल. तो वहाँ पे वो लोग को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाता था. ऊपर से लाइक आई शुडंट गो इन दैट जोन, बट हेट आया है. सो हाउ डिड यू टैकल इट? मैं इनफैक्ट मैंने आज तक लाइक स्टिल इट्स बीन लाइक 4 years, मुझे अगर इंस्टाग्राम पे भी आता है कुछ, आई टॉक टू देम डायरेक्टली. या तो डीएम करता हूँ या तो कमेंट सेक्शन में बात करता हूँ. टिल द टाइम आई डोंट मेक देम इन अ लाइक सर्टेन सिचुएशन, आई बिल्ड अ सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे उसका ओपिनियन मेरा ओपिनियन मैच हो, एंड देन ही रियलाइजेस भाई जो उसने मुझे जज किया मेरे वीडियो से या मेरे फोटो से, वो एक्चुअल में है नहीं. एंड आई कंक्लूड इट ऑन दैट नोट. आज भी मेरे काफ़ी कुछ हेटर्स हैं जो आज के टाइम पे मेरे से बात करते हैं, एंड डोंट नो हु लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, और मुझे पता है कि मुझे इसको कैसे डील करना है. तो
So this is how you need to deal. सबको नहीं कर पाओगे, but anyway you try to do that because that is how you like spread positivity and you keep connected with them. This is how you can like dodge these haters. Because- उनको गाली देना या उनको block करना is not the solution. You have to help them evolve. Yeah. That is the problem. Because in this, you know, the content, the genre which we are into right now, the entertainment industry that we are in right now, यहाँ पे आप impulsive होके नहीं खेल सकते. Exactly. यहाँ पे ऐसा है ना कि कोई किसी की सुनने के लिए नहीं बैठा है. Exactly. और जैसे accessibility या free access हो जाता है इंटरनेट का, everybody wants to do something. चाहे वो कंटेंट क्यों ना बनाए लेकिन कमेंट जरूर करेगा और कुछ ना कुछ तो बोलेगा. Right. बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग दैट सीरियसली, आप अपने कंटेंट पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे. और ये आने ही वाला है, तो इट्स बेटर यू नो हाउ टू डील विद देम इन अ वेरी पोलाइट वे. एग्रेशन इज नॉट द सोल्यूशन एनी डे, तो वो तो रखना ही नहीं. So on that note, it was really great having you on the channel. It was really great talking to you after so long. We are meeting, I guess, after 3 or 4 years, right? Yeah, it's been like 3 years. So it was really great having you on this podcast because I was so excited, and I know I kind of Alright. messed up with this podcast because I am really nervous. I know it's Because, it was you know, really good actually. Although we are good friends, although you are my senior, you are my elder brother, but I had that kind of, you know, I am sitting with a personality who has already done something. So I was have really to do a nervous. lot. I haven't done anything. This is just the beginning. But for So, me, yeah, you are. yeah, exactly. So I hope this guy is speaking so good. So I hope you guys have subscribed to his channel, and if you haven't, I believe that you should do that. And if you're coming from my source, I believe that you should follow and subscribe his Instagram and YouTube because we might collaborate soon on my channel as I well. hope, I hope. And is there anything else that you want to mention? Yeah, also one more thing. Uh-huh. Thank you so much. I have reached 350 subscribers. That is very big thing for me because growing and going to that, you know, I didn't even imagine that I'll hit 300 subscribers, but I am on 350 right now. Thank you so much for that. So I will be coming up with more podcasts with more content with this guy also and some few more people. So thank you so much for watching this podcast. If you people like this video, share this video to people that are into this world or maybe who will love to watch this video. And this was it for today's video. Thank you Ovid bhai once again for coming to the video. It This was is Faizan. fun. It was fun. This is Ovid. Yeah, okay, fine. This is my, you know, like outro. This is Faizan signing off from Faizan Nova. आप भी अपना कर दो. नहीं यार, काफी है, नाम काफी है, अपना दिख रहा है ना यार. Exactly. Right? Also subscribe to Ovid bhai's channel. The name is Yeah. Ovid Siddiqui. And I hope people enjoyed it. See ya. बाकी have fun. See ya. Bye. कैसा था भाई? अच्छा गया? मैंने टट्टी किया भाई. भाई कुछ नहीं यार. टट्टी भाई किया. मेरे को डर ये है ना कि ये भाई अपने